السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ میں ہوں فرحان شبیر، میں ہوں فروت ملک۔ بلیٹن میں ساتھ ہیں انوار خاور۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے شاہد خان آفریدی کے حوالے سے۔ شاہد خان آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ جتنی کرکٹ انہوں نے کھیلنی تھی وہ کھیل چکے، اب کسی فارمیٹ کے لیے امیدوار نہیں۔ بوم بوم آفریدی نے بڑا اعلان کر دیا، ساتھ ہی کہا کہ سرفراز احمد فائٹر کھلاڑی ہے، تینوں فارمیٹ میں کپتان بنانے کا مطالبہ۔ بالکل، آفریدی نے بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی کرکٹ کھیلنا تھی وہ کھیل لی، اب کسی بھی فارمیٹ میں امیدوار نہیں ہوں کھیل کا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے سرفراز کے لیے کہا ہے کہ اس کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرفراز ایک فائٹر کپتان ہے، اگر کپتان بنایا گیا تو اچھے نتائج ملیں گے۔ شاہد آفریدی نے سرفراز کو تینوں فارمیٹ میں کپتان بنانے کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سرفراز ایک فائٹر کھلاڑی ہے۔ For a six, but he's back. He goes again, goes big, that's up in the air. بوم بوم آفریدی کے مداحوں کے لیے بڑی اور بری خبر۔ لالا نے انٹرنیشنل کرکٹ سے باقاعدہ طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ Only he could have done it. جامعہ کراچی میں تزئین و آرائش کے افتتاح کے موقع پر ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر کہنا تھا کہ جتنی کرکٹ کھیلنی تھی کھیل لی، اب کسی فارمیٹ کے لیے امیدوار نہیں ہوں۔ میں نے جتنی کرکٹ کھیلنی تھی کھیلی ہے، میں اپنی لیگ کرکٹ انجوائے کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے اس کام کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ سابق کپتان نے قومی ٹیم کی موجودہ حالت پر بھی بات کی اور مفید مشورے دیے۔ سرفراز کو تینوں فارمیٹ میں کپتان بنانے کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تینوں فارمیٹ میں سرفراز بن رہا ہے، اگر یہ پلان ہے بورڈ کا، سلیکشن کمیٹی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پلان ہے۔ کرکٹ سے علیحدگی کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی بیان بھی داغ دیا۔ بولے، ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، بچوں کو پڑھائی کے لیے اچھا ماحول فراہم کرنا پڑے گا۔ عمران خان کے فٹنس کے حوالے سے دیے گئے بیان کو بھی گول کر گئے۔ بوم بوم آفریدی کا کہنا تھا کہ پی سی ایل کے اس بار کے ایونٹ میں بھی کانٹے کے مقابلے دیکھنے میں آئیں گے اور بھرپور پرفارم کرنے کا عزم بھی دہرا دیا۔ بوم بوم کے بڑے فیصلے کو شائقین نے خوشائند قرار دے دیا، لیکن کچھ مداح بھی افسردہ نظر آ رہے ہیں۔ خیال میں یہی صحیح وقت تھا کہ انہیں ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ ان کی ویسے ایج بھی زیادہ ہوگی ہے اور ان کا ویسے بھی انہوں نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، لیکن وہ سپر سٹار ہیں، رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کھیلیں، وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ شاہد آفریدی نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے۔ نہیں چھوڑنی چاہیے اسے کرکٹ، کیونکہ وہ بہت اچھا کھیلتا ہے اور مطلب پاکستان ٹیم کے لیے ایک اچھا پلیئر ہے۔ آفریدی بہت ہی اچھا پلیئر ہے اور ویسے بھی اب پی ایس ایل آ رہا ہے تو اسے ضروری کھیلنا چاہیے۔ میں شاہد آفریدی کی بہت بڑی فین ہوں، ہم کرکٹ دیکھتے صرف اس کی وجہ سے ہیں، اگر وہ کرکٹ نہیں کھیلے گا تو پھر کرکٹ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آفریدی کو کھیلنا چاہیے کیونکہ ہمارے بہت اچھے پلیئر ہیں وہ، اور آئندہ بھی وہ انشاءاللہ اچھی پرفارم کریں گے۔ اس کو اب ریٹائرڈ ہونا چاہیے، نچلی سطح پہ اس کو کھیلنا چاہیے، ڈومیسٹک یہ وہ فلاں، وہ ون ڈے تو ویسے بھی ریٹائرڈ ہوا ہے۔ میں پاکستان کی طرف سے کرکٹ نہیں کھیلوں گا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو کرکٹرز جو بھی کھیلتے ہیں وہ پاکستان کی ہی طرف سے کھیلتے ہیں، تو لہٰذا اس کو میرے خیال سے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور اب کچھ بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے سربراہ نجم سیٹھی نے ایک بار پھر لاہور میں فائنل کرانے کا عزم دہرا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی سی سی ٹاسک فورس کے سربراہ جائز کلارک نے لاہور میں سیکیورٹی معاملات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی جلد بحالی کا عندیہ بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل کھیلنے والوں کو لاہور میں ترکی کے صدر جیسی سیکیورٹی دیں گے۔ ٹورنامنٹ میں نئے کھلاڑی آئیں گے تو دنیا کو حیران کر دیں گے۔ آپ کو پی ایس ایل کے حوالے سے خبر دیں جس میں نجم سیٹھی کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری سیکیورٹی دیں گے اور پی ایس ایل کا فائنل کھیلنے والوں کو صدر مملکت جیسی سیکیورٹی۔ یہ پی ایس ایل انہی کی ہے جتنی کہ ایچ پی ایل کی ہے یا کسی اور اسپانسر کی ہے۔ ہمارے لیے ہر اسپانسر بگ اینڈ اسمال ہیز دا سیم میرٹ، اینڈ یقین کریں دیر از نو شارٹیج آف اسپانسرز ناؤ۔ دو دن پہلے آئی سی سی بورڈ ممبر جائز کلارک جو کہ پاکستان ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں اور انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ آئے تھے یہاں ایک آئی سی سی سیکیورٹی آفیشل کو ساتھ لے کے، یہاں دیکھنے کے لیے کہ لاہور شہر کی سیکیورٹی کیا ہے، کیا یہاں پی ایس ایل فائنل ہو سکتا ہے، کیا یہاں دوسری فارن ٹیمز آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی۔ اور وہ جو باتیں ہم نے بیہائنڈ دا سینس کی، جو ان کو ہم نے بریفنگ دی، جو پنجاب گورنمنٹ نے ان کو بریفنگ دی، ان کا جاتے جاتے یہ کہنا تھا کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ ان ہیومن سیکیورٹی میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی، کیونکہ ہم نے جو سیکیورٹی
हम जो मुहैया कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी प्रेसिडेंट ऑफ टर्की के लिए की गई थी। और बात करते हैं माशरती गिरावट के एक अफसोसनाक पहलू की। खवातीन के साथ शादी का ड्रामा रचाकर काबिल एतराज़ वीडियो बनाने का मामला संगीन हो गया है। सियालकोट में काबिल एतराज़ वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का एक और शिकार मंजर आम पर आया है। गुनाहों धंधे में एक पुलिस एहलकार भी मुलविस है। न्यू न्यूज़ ने बार बार आवाज़ उठाई तो पुलिस को होश आया। 2-4 लोगों को उठाकर हवालात में डाल दिया, लेकिन पेटी भाई को मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया। मरकजी मुलजिमा और नामजद मुलजिम सब इंस्पेक्टर परवेज खान ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। होशियार, खबरदार, गैर अखलाकी धंधे में मुलविस मकरू चेहरे न्यू न्यूज़ दिखा रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ सियालकोट में काबिल एतराज़ वीडियोस के शर्मनाक वाक़े के बाद एक और मुतासरा खानदान मंजर आम पर आ गया। मुतासरा खानदान ने इंकशाफ किया। इस गिरोह के मरकजी मुलजिम आबिद ने हसास इदारे का ऑफिसर बनकर लेक्चरर खातून से अप्रैल 2016 में शादी की। शादी के बाद मुलजिम आबिद ने खातून को नशावर अद्वियात देकर उसकी काबिल एतराज़ वीडियोस और तस्वीर बनाई और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। मुलजिम ने ब्लैकमेल करके खातून से 3 लाख रुपए नकदी और 15 तोला तलाई जेवरात हथिया लिए और मजीद रकम का तकाजा करता रहा। मुलजिम मजीद रकम न मिलने पर काबिल एतराज़ वीडियो इंटरनेट पर नशर करने की धमकियां देता रहा, जबकि खातून ने तंग आकर 2 मरतबा खुदकुशी की कोशिश भी की। दूसरी जानिब सियालकोट वीडियो स्कैंडल केस में मरकजी किरदार अदा करने वाली मुलजिमा और FIR में नामजद मुलजिम परवेज खान सब इंस्पेक्टर को ताहाल पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है, जबकि काबिल एतराज़ वीडियोस बनाने वाला मरकजी मुलजिम आबिद थाना हाजीपुरा की हवालात में बंद है। जबकि पंजाब पुलिस मसमूम धंधे में मुलविस गैंग को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। रावलपिंडी में कमसिन बच्ची से जबरदस्ती निकाह के बाद काबिल एतराज़ वीडियो बनाने वाले मुलजिमान ने अबूरी जमानत करा ली। बच्ची ताहाल लापता है। वालिदैन को काबिल एतराज़ सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी गई है। बेबस वालिदैन थाने पहुंचे तो कानून के रखवाले अपनी कानूनी मजबूरियों का रोना रोने बैठ गए। मुलजिमान अबूरी जमानत करवा चुके हैं और अभी तक कानून खामोश है। इस मजमूम धंधे में मुलविस लोगों को कानून भी सजा नहीं दे रहा। मुलजिमान ने अपनी अबूरी जमानत करा ली है। बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं कराई जा सकी। मदरसे जाती बच्ची को जबरदस्ती अगवा किया गया। निकाह के बाद काबिल एतराज़ वीडियो बनाई गई और अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी तक बच्ची भी लापता है और मुलजिमान अपनी अबूरी जमानत भी करवा चुके हैं। इंतहाई इंदोहनाक और अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है रावलपिंडी में, जहां बच्ची से जबरदस्ती निकाह के बाद काबिल एतराज़ वीडियो बनाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुलजिमान जो पकड़े गए लेकिन अभी अबूरी जमानत करा चुके हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। न्यू न्यूज़ की खबर पर पुलिस हरकत में आ गई और मिसरियाल के इलाके से अगवा की गई कमसिन बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस ने कमसिन बच्ची को अदालत में पेश कर दिया। बच्ची का निकाहनामा अदालत में जमा करवा दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजहर शरीफ से। अजहर बताएगा अभी तक क्या कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से। जी बिल्कुल, न्यू न्यूज़ बना है उस घराने की आवाज़ जो बिल्कुल आज से 10 दिन से वो बिलबिला रहा था। कभी थानों के चक्कर, कभी कचहरियों के चक्कर काट रहा था, लेकिन आज ये आखिरकार ये किस्सा कुछ ख़त्म होता नज़र आया। पुलिस हरकत में आई। कल न्यू न्यूज़ ने ये खबर जो है ब्रेक की, उसके बाद कानून हरकत में आया और आज वही बच्ची जो 5-7 दिन से कभी पुलिस को नहीं मिल रही थी, जबकि इसके मुकदमे में 2 मुलजमान की बुरी ज़मानतें भी हो चुकी थी। एक मुलजम जो था वो पुलिस की हिरासत में था और आज आखिरकार पुलिस ने वो बच्ची बाजियाब करवा ली और उसे आज अदालत में पेश किया गया है। उसके साथ साथ इस कमसिन बच्ची 11 साल बच्ची का निकाहनामा भी अदालत में पेश किया है। ये एक अलग जुर्म है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ, बच्ची को मदरसे जाते हुए घर के बाहर से अगवा किया गया था। उसके बाद बच्ची के साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया और काबिल एतराज़ वीडियो बना के इनके घर वाले के अहले खाना को वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया जा रहा था कि 5 लाख रुपए तवान दिया जाए, वरना ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर फेंक दी जाएगी। उसके अलावा आज पुलिस हरकत में आई है। रावलपिंडी पुलिस ने, थाना नसीराबाद पुलिस ने आज वो बच्ची जो है बाजियाब करवाई है और उसके बाद आज उसे अदालत में भी पेश किया जा रहा है, जहाँ पे इकबाली जो है वो बयान उनका रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो इनका निकाहनामा है बच्ची का, वो भी अदालत में पेश कर दिया गया है। इसके बाद देखा जाएगा बच्ची का इकबाली बयान के बाद आया कि मुलजमान इस तरह से बाकी मुलजमान की बाकी जमानतें जो खारिज। न्यू न्यूज़ की खबर पर पुलिस हरकत में आई और हम देख रहे हैं कि इस वक्त इस बच्ची को भी बाजियाब करा लिया गया है। बहुत शुक्रिया अजहर शरीफ, हमें अपडेट कर रहे थे।
अभी रुक करेंगे मासेरा का, जहां चट्टा बट्टा के मकाम पर 3 बच्चों की मां को तेल छिड़क कर आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। 2 अफराद असलहे के जोर पर घर में दाखिल हुए और मकतूला को रस्सियों से बांधकर आग लगा दी गई। मकतूला का शौहर 6 माह से कत्ल के इल्जाम में मासेरा जेल में बंद है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इन अफराद के हवाले से, अभी तो कोई तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या आज मंसरा के शहर चट्टाबट्टा में मुकाम पर पेश आया, जहाँ एक और हवा की बेटी को बेदर्दी से तेल छिड़क के आग लगा दी थी। सुबह 4 बजे ये वाक़या सामने आया, जब वो लड़की के वालिदैन अचानक आवाज़ सुर होल पे लड़की के घर गए तो वहाँ पे उसको आग लगी हुई थी। तो वो जैसे उसकी आग बुझाने के में उसके वालिदैन लगे, इस दौरान वो 90% झुलस चुकी थी, जिसके नतीजे में वो वहीं मौके पर जमाक हो गई थी। तो वहाँ से फिर पुलिस ने यहाँ पोस्टमार्टम के लिए किंग अब्दुल्ला अस्पताल मंसरा लड़की को ले आए थे, जिनका अभी पोस्टमार्टम हो चुका है और जो लाश है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है। अस्पताल जरा है, जो पोस्टमार्टम जरा है, उनका ये कहना था कि लड़की का जो 90% जिस्म का हिस्से हैं वो आग से बुरी तरह झुलस चुके थे, जिसके नतीजे में उसकी शायद मौत जाँ हो गई है। और दूसरा, उसके गले में और मुँह में निशानात भी मिले हैं, जो मुख्तलिफ फंदे लगा के उसको शायद बताया जाता है कि कत्ल किया गया। इसलिए मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। और पुलिस ने वाक़या पेश आया मासेरा में, जहां खातून को आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। अकील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सियालकोट और रावलपिंडी में लड़कियों से निकाह करने के बाद नाजेबा वीडियोस बनाने के बाद अहले खाना को ब्लैकमेल करने वाले गिरोहों का इंकशाफ हुआ है। मनसेरा में खातून को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर जिंदा जला दिया। हैदराबाद में दरिंदों ने 11 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। खवातीन के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती पर मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजी रहनुमा मुसरत मिसबा। बहुत शुक्रिया मुसरत मिसबा आपके वक्त का। आप फरमाइएगा कि हर तरफ ये जुल्म और सितम की दास्तान, हवा की बेटियां निशाना बन रही हैं जुल्म और ज्यादती का, क्या कहेंगे आप? मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक लम्हा फिक्रिया है हमारे अरबाब इख्तियार के लिए और हमारी स्टेट के लिए कि इस किस्म के वाक़यात जो हो रहे हैं इसको रोकथाम करने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि जिनको भी आप पकड़ें, जिन जराइम पेशा अफराद को सामने लाते हैं उनको सज़ा भी दें और सज़ा भी सामने लाएं, क्योंकि जब उनको सज़ाएं, ये तमाम चीजें बताने में तो ये चटपटी खबर बनी होती है और ये एक तरह का ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज कभी नहीं होती कि जिसको पकड़ा गया उसको सजा मिली है या उसको सजा भी दी गई है या नहीं गई है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कानून है तो उसको लागू किया जाए। जी मुसरत मिसबा साहब, आपके ख्याल से इस तरह से बढ़ते हुए ये मकरू धंधे, जिस तरह से खवातीन को हिरासा किया जा रहा है और अब तो मतलब अजीबोगरीब किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, आप क्या समझते हैं बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या जाहिलियत है या क्या सूरत हाल है? इसकी जो बुनियादी वजूहात जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो जाहिर है कि तालीम का है और जाहिलियत का है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम तालीम की फुकदान की बात कर रहे हैं तो फिर हम मजहब से दूरी की भी बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या कि आपको ये नहीं पता कि तमाम जो मकरू धंधे हो रहे हैं या तरीका कार इख्तियार किया जा रहा है खवातीन को हरासा करने के लिए, उनके साथ जाती करने के लिए, क्या इसमें हमारे मजहब में कोई इस किस्म की चीज़ों की गुंजाइश है? कतई नहीं, बल्कि बहुत साफ अल्फाज में कहा गया है और कंडेम किया गया है। तो अगर हम जब तक तालीम के साथ साथ शऊर बेदार करने के लिए इसके बारे में आगाही दे लोगों को, इसमें तालीम का हिस्सा बने, खवातीन की इज्जत एहतराम जो है वो एक नॉलेज होना चाहिए जो हर एक शख्स के पास होनी चाहिए, चाहे वो कोई बच्चा हो, लड़का हो, कोई खवातीन है, क्योंकि खवातीन को अपने हुकूक के बारे में भी नहीं पता तो वो उसकी आवाज़ क्या उठाएंगी। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने के लिए एक कोई थिंक टैंक बनाना चाहिए कि जी ये फौरन जो है इस किस्म के वाक़यात, हादसात जो रूनमा हो रहे हैं और आप जिस तरह आपने कहा कि भयानक तरीन, तो इनको रोकने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुसरत। खवातीन पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर पंजाब असम्बली के दौरे पर आई मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा और रुकने सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी का कहना था कि खवातीन को अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं।
औरतों को किसी भी हवाले से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और जो माइंड सेट है ना, वो ना सिर्फ असेंबलियों में बैठा है, वो असेंबलियों से बाहर भी बैठा है, जिसकी चीज़ के लिए हम बार बार कहते हैं कि इस माइंड सेट को निकालें। 15-15 साल तक एक वही माइंड सेट बैठा रहेगा जो कभी भी किसी भी हवाले से वो असेंबली की कार्रवाइयों में ना हिस्सा लेता है, ना ही वो लेजिस्लेशन में उसकी कोई कैपेबिलिटी होती है या वो कोई किरदार अदा करता है। तो इस माइंड सेट को हर प्रोफेशन में, हर जगह उसको हटाने की ज़रूरत है। न्यू न्यूज ने संगीन सूरत हाल पर आवाज उठाई, लेकिन हुकूमती बेहिसी का आलम यह है कि पंजाब की वजीर कानून नाना सनाउल्लाह से न्यू न्यूज ने मौक़िफ़ के लिए राबिता किया तो मौसूफ ने जवाब दिया कि मीडिया के पास मनफी खबरें चलाने के अलावा कुछ नहीं होता, मीडिया को पंजाब हुकूमत अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऐसी खबरें दिखाते हैं। मुल्जिमान को सजा दिलाने के हवाले से वजीर कानून का यह कहना था कि मुल्जिमान को सजा दिलाना उनका काम नहीं है। आज मौक़िफ़ देने से इनकार किया वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने, और उनका यह भी कहना है कि मुल्जिमान को सजा दिलाना उनका काम नहीं, जबकि मीडिया का काम है कि वो मनफी खबरें सामने लेकर आता है। रावलपिंडी में, सियालकोट में मकरू और मजमूम धंधे जिनका इंकशाफ हुआ है और मीडिया ने इस वक्त अवाम को दिखाया है, उस पर यह कहना है राना सनाउल्लाह का कि मीडिया का तो काम है कि वो मनफी खबरें दिखाता है और अब मुल्जिमान को सजा दिलाना उनका काम नहीं है। रुक करेंगे कराची का। सीटीडी के हाथों मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिम के अहले खाना के लाश के हमरा मंगूपी रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। वसीम असलम चंद रोज कबल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मुबैना तौर पर फायरिंग के तबादले में मारा गया था और उसके लवाहिकीन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने दावा किया है कि वसीम को घर से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने मावराए अदालत उसको कत्ल किया है। इस वक्त उसके लवाहिकीन लाश रखकर मंगूपी रोड पर सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज रजब अली से। रजब अली, अभी तक की तफसीलात दीजिएगा। बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जाने से जो मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले वसीम असलम के अहले खान लाश के हमरा एहतजाज किया है। ये एहतजाज मंगोपीर रोड पर बड़ा होट के करीब जो है ये किया गया, जिसमें उसके वर्सा का ये मुतालबा था कि पुलिस ने मावरा अदालत कत्ल किया है। उसे जो है वो 23 जनवरी को घर से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मावरा अदालत कत्ल किया है। जबकि जो है वो जो वर्सा थे, जो मुजाहिरीन थे, उन्होंने एक प्ले कार्ड हाथों में उठा रखे थे जिसमें वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार से वाक़े का नोटिस लेने और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि इसी दौरान पुलिस और रेंजर्स की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई थी मुमकिन तौर पर गड़बड़ से निपटने के लिए। पुलिस अफसरान ने जो है वो वर्सा से जो है मुज़ाकरात भी किए, जिसमें मुज़ाकरात तय पा गए और अब जो है वो एहतजाज खत्म हो गया है। पुलिस अफसरान ने जो है वो मुज़ाकरात में ये जो है कहा है कि आप तस्लीम करने के बाद थाने आके बाकायदा तौर पर दरखास्त दे, उसके बाद जो है वो पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रजब अली, आपने तफसीलात से आगाह किया। और कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक के मामले पर अपोजिशन जमातों की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात जारी है। अपोजिशन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो कौमी असम्बली इजलास को पुरअमन रखने की जमानत नहीं दे सकते। अपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की इजाजत का मुतालबा कर दिया है। अपोजिशन जमातों की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है और मुतालबात ना माने गए तो इजलास को पुरअमन रखने की जमानत नहीं दे सकते। उधर सुप्रीम कोर्ट में नैब ने सागदार की मुआफी से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया है। वजीर आजम के खानदान की वरासत का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया गया। नैब, स्टेट बैंक और SCCP के शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में अपीलें क्यों दायर नहीं की, अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत नैब ने सागदार की मुआफी से मुतल्लिक रिकॉर्ड जमा करा दिया। जस्टिस इजाज अफसल ने रिमार्क्स दिए कि वादा मुआफ गवाह बनने के बाद बयान इसहाक दार नहीं बल्कि वजीर आजम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब, स्टेट बैंक और SECP ने शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में अपीलें क्यों दायर न की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान की जानिब से शरीफ खानदान की वरासती जायदाद की तकसीम का रिकॉर्ड भी पेश किया।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि कोई वजाहत नहीं की गई कि पैसा कहां से आया, सिर्फ कहा गया कि कर्ज लेकर फैक्ट्री लगाई गई। उस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कर्ज से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। जस्टिस शेख अजमत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई अंदाजा है कि बाकी वाजबात कैसे अदा हुए। सलमान अकरम राजा ने मियां शरीफ का पुराना रिकॉर्ड पेश किया और कहा कि गल्फ फैक्ट्री के 75% शेयर्स की रकम बैंक कर्जे की मद में वापस कर दी गई। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऑफशोर कंपनीज का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए, रिकॉर्ड सामने लाए तो हकायक का पता चल सकता है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 3/184 में अदालती इख्तियारात वसी हैं, ताहम दूसरे इदारों का काम अदालत नहीं कर सकती। इमरान खान का कहना है कि दरअसल इसहाक डार का बयान ही मनी ट्रेल है, शरीफ खानदान सारा कुछ मियां शरीफ पर डाल रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि कतरी शहजादे और सोने की अंडी देने वाली मुर्गी में कोई फर्क नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि दरअसल इसहाक डार का इतराफी बयान ही मनी ट्रेल है, उन्हें पता नहीं कि अदालत में जाएंगे, इसलिए बार बार बयानात बदल रहे हैं। असेंबली में कहा कि पैसा गया वहाँ दुबई से गया जद्दे और जद्दे से लंदन पहुंचा। इधर अदालत में कह रहे हैं कि दुबई से पैसा गया, नहीं पहले कैश में दिया पैसा कतरी को और कतरी से फिर कतर गया और फिर कतर से सीधा लंदन पहुंच गया, जद्दा उड़ गए बीच में से। बयान मुख्तलिफ है। ये क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इनको नहीं पता था कि इनको सुप्रीम कोर्ट पे आना पड़ेगा। उन्होंने नैब पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मुल्क में कोई इदारा आजाद नहीं। वजीर आजम असेंबली में कहते थे कि सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि उनके वकला कह रहे हैं कि केस पुराना हो चुका है और सारा कुछ मियां शरीफ पर डाला जा रहा है। सारा कुछ बेचारे मियां शरीफ पर डाल दिया है। पहले तो ये नहीं बता सके कि वो पाकिस्तान से पैसा दुबई आया, क्योंकि दुबई में इन्होंने कैसे मिल शुरू कर दी, तो वो भी मियां शरीफ बेचारों के ऊपर डाल दिया कि वो मनी लॉन्ड्रर उनको बना दिया। फवाद चौधरी का कहना था कि 2 मनी ट्रेल का पता चला है। एक मनी ट्रेल इसहाक डार के इर्द गिर्द घूमती है, कतरी शहजादी और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी में फर्क नहीं। कतरी और सोना देने वाली मुर्गी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो सोने के अंडे दी जा रही है। यहाँ पे वो मामला जो है आई जा रहे हैं। एक BMW भी है जो 35 लाख की ली थी, जो 2.5 करोड़ की बिकी। तो ऐसी मनी ट्रेल है जो मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की तरफ से सामने है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शरीफ खानदान के अराकीन के बयानात में तजादात पर शदीद तनकीद की और उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ पर मबनी तारीखी फैसला देगी। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इमरान खान को असेंबली में आने की मशरूत दावत दे दी। उनका कहना है कि पनामा हंगामा खत्म होने में 10-15 रोज बाकी हैं, उसके बाद इमरान खान बेरोजगार हो जाएंगे। पहले दिन बयान था और वही तमाम। हाँ साहब, वजीर आजम का जो बयान पहले रोज था, इस पर वो आज भी कायम है। मरियम औरंगजेब की ललकार। हर रोज नया झूठ, हर रोज नया बहतान। अकल दंग रह जाती है झूठे इल्जाम सुनकर। इतलात की वजीर के कप्तान पर वार। तरक्की के मैदान में वजीर आजम का मुकाबला करने की दावत भी दे दी। इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ के साथ सियासत में मुकाबला करें, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी न करें। पनामा का हंगामा खत्म होने में 10-15 रोज बाकी हैं, इसके बाद बेरोजगार हो जाएं। तलाल चौधरी का इमरान खान को इंतबाह। कहते हैं कि केस खत्म होने के बाद असेंबली तशरीफ लाएं, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यादा दिन नहीं अब आपके, और 10-15 दिन है, इसके बाद आप भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि पनामा खत्म होने वाला है। और अपने अराकीन को और खुद असेंबली तशरीफ लाएं, पाकिस्तान की बात करें, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। PTI ने आपको वजीर बनाने का मुतालबा किया था, उसका क्या बना? साफी का दानियाल अजीज से सवाल। इन बेचारों पे मुझे तरस आता है, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मीडिया से गुफ्तगू के लिए आए, लेकिन पनामा केस पर कोई बात ना की। कहते हैं कि कौमी असेंबली में हंगामा राई में पहल PTI ने की। स्पीकर से आज बातचीत होना है, इससे पहले वो माहौल खराब करना नहीं चाहते। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि पनामा केस में एक झूठ बचाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। उम्मीद है 10 से 15 दिन में अदालत से फैसला आ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत मजहबी जमातों पर पाबंदी लगाने का सोच रही है। अखबारात से पता चला कि कोई नया खत भी आ रहा है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है,
वैसे वैसे शरीफ फैमिली अपने बयानात को नया रंग दे रही है। और अभी अखबारों के ज़रिए पता लगा है कि नया ख़त आ रहा है हसन नवाज साहब या हुसैन नवाज साहब कि मरियम बीबी जो है वो दस्तखत करने की मिजाज थी। और ये कोर्ट पहले भी कह गई है कि जैसे जैसे केस में सवालात उठते हैं आप अपने जवाब को वैसे टर्न दे देते हैं। ये जो मर्ज़ी कर लें, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ इनके गले पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का इंसाफ पे मबनी एक तारीखी फैसला देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन का कहना है कि कतरी शहजादे का खत मनी लॉन्ड्रिंग का इतराफ है और हम तवक्को करते हैं कि अदालत ऐसा फैसला नहीं देगी जिससे अनारकी फैले। शुएब अली की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि शरीफ खानदान जायदाद की मलकियत तस्लीम कर चुका है। जायदाद की मलकियत मानने के बाद सबूत मियां बरादरान पर है। उन्होंने कहा, क्या ये अजीब बात नहीं कि पूरा खानदान एक दूसरे को अरबों रुपए के तोहफे दे रहा है। शरीफ फैमिली के तमाम अफराद के बैंक अकाउंट्स की छानबीन तक मनी ट्रेल का पता लगाना मुमकिन नहीं। एतजाज अहसन ने कहा कि कतरी शहजादे का खत मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ है और कतरी खत ही मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को बचाने का रास्ता है। और सिंध असेंबली से खबर दें, उजरतों की अदायगी से मुतालिक बिल पर बहस शुरू हो गई। ख्वाजा इजहार और निसार खोड़ू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि वो सिंध के बेटे हैं, उन्होंने कम से कम सिंध को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिस पर निसार खोड़ू ने कहा कि खुद को सिंध का बेटा कहने वाले बताएं कि उनकी कायमा कमेटी में इस बिल को 11 महीने क्यों रखा गया। सिंध असेंबली में फिर हंगामा आ रहा। निसार खोड़ो और ख्वाजा इजहारुल हसन में तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा। सिंध असेंबली में उजरतों की अदायगी से मुताल्लिक बिल पर इजलास में बहस छिड़ गई। ख्वाजा इजहार और निसार खोड़ू ने एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर चलाए। शैला रजा रकीन असेंबली को वार्निंग देती रही। आप तीन एक साथ नहीं बोल सकते, आप लोग एक साथ नहीं बोल सकते। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि निसार खोड़ू से ज्यादा वो सिंध के बेटे हैं, उन्होंने कम से कम सिंध को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जिस पर निसार खोड़ू ने भी जवाबी वार किया और कहा कि जो खुद को सिंध का बेटा कहते हैं वो बताएं कि उनकी कायमा कमेटी में उजरतों से मुतालिक बिल को 11 महीने तक क्यों रोके रखा गया। आप सिंध के बेटे ना, आपसे दुगना कम से कम हम सिंध के बेटे हैं, क्योंकि हमने सिंध को नुकसान नहीं पहुंचाया कभी भी। इजलास के दौरान समर अली खान का कहना था कि वो बिल के खिलाफ नहीं, सिर्फ बिल पास करने के तरीकाकार पर इख्तिलाफ है। और बिल आखिर डॉलर गर्ल कामयाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने करेंसी स्मगलिंग केस में मुलव्विस मॉडल आयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए वजारत दाखिला की अपील को खारिज कर दिया है। डॉलर गर्ल ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर उड़ान भरने की ठान ली है। वो पहले दुबई और फिर स्पेन जाएंगी। स्पेन में मॉडल आयान ने मॉडलिंग और म्यूजिक एल्बम के मुआहदे कर रखे हैं। आयान अली जीत गई, सारे रास्ते खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल गर्ल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। डॉलर गर्ल ने भी जहाज में बैठने की तैयारी पकड़ ली। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आयान अली का नाम कत्ल केस में ECL में डाला गया है। वजारत दाखिला का मौक़िफ़ था कि पंजाब हुकूमत ने आयान अली को शामिल तफ्तीश करने के लिए नाम ECL में डालने की दरख्वास्त की थी, इसलिए दफा 109 के तहत आयान अली का नाम ECL में डाला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि आज तक 109 के तहत कितने मुल्जिमान का नाम ECL पर डाला गया। हतमी दलाइल सुनने के बाद अदालत ने आयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए वजारत दाखिला की अपील को खारिज कर दिया। डॉलर गर्ल भी उड़न छू होने को बेताब हैं। कहां जाना है और कैसे जाना है ये भी मंजर आम पर आ गया। आयान अली दुबई में मुख्तसर पड़ाव के बाद स्पेन रवाना हो जाएंगी, जहां उन्होंने मॉडलिंग और म्यूजिक एल्बम के मुआहदे कर रखे हैं।
दूसरी जानिब वजारत दाखिला को सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी अहकामात का इंतजार है, जिसके बाद ही अयान अली का नाम ECL से निकाला जाएगा। अयान अली को 14 मार्च 2015 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाते हुए सामान में से 5 लाख से ज्यादा अमरीकी डॉलर्स बरामद होने पर कस्टम हुकाम ने हिरासत में लिया था। खबरों में खुशामदीद कहेंगे आपको। अहम खबर से आगाह करें, हवेलियां तैयारा हादसे के हवाले से। हादसे में जाँ बहक अमले के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए नमूने कौन हासिल करेगा? इस्लामाबाद पुलिस, जिला इंतजामिया और हवेलियां पुलिस के दरमियान हद बंदी का तनाजा हल नहीं हो सका है। मुतालिका महकमे जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे हैं। पिम्स इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इस हवाले से बाकायदा खत भी लिख दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ नोमान मकसूद से। नोमान, खत तो लिखा जा चुका है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इंतजामिया को मौसूल हुआ ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, जिसमें ये कहा गया है कि ये हादसा जो है इसमें जो नमूने हासिल किए जाने इसमें तयन नहीं हो पा रहा। कौन तयन करेगा कि ये नमूने जो है वो किसके हवाले किए जाएं, क्योंकि हवेलिया हादसा के अंदर अभी तक हवेलिया पुलिस जो है वो भी पिम्स का कहना है कि उसने राब्ता नहीं किया और इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उसे ही जो नमूने हैं वो हवाले किए जाएं। और तीसरी जानिब जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है वो कह रही है कि उसके हवाले किए जाएं, जबकि हवेलिया की इंतजामिया जो है वो ये कहती है कि ये नमूने जो है वो उनके हवाले किए जाएं। और अब ये सवाल उठता है कि ये नमूने जब उनके हवाले किए जाएंगे तो फॉरेंसिक के लिए जो एग्जामिनिंग के लिए जो नमूने हैं वो पहुंचाए जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि फौरी तौर पर जो है वो कमेटी की जानिब से ये कहा गया था कि जो तैयारी के जो 6 अरकान थे उनके दोबारा नमूने हासिल करने के बाद उसकी दोबारा फॉरेंसिक की जाएगी और फॉरेंसिक करने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। तो अभी तक तनाज़ा हल नहीं हो सका कि ये हुदूद जो है वो किसकी है, और उसके बाद जो है वो इसे दूसरे मरहले के अंदर जो एग्जामिनिंग है उसका बहुत शुक्रिया आपका नोमान मकसूद हमें तफसीलात बताने के लिए। गुजरांवाला से अफसोसनाक खबर, साहिबान बनने वाली छत ने कयामत बर्पा कर दी। इमदादी टीमों के मुताबिक गुजरांवाला के नवाही इलाके में घर की छत गिरने से मकान में मौजूद वालिद अपने 4 बच्चों समेत मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। बदकिस्मत खानदान एक मरले के घर में रिहाइश पजीर था। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त अहमद, सहर, फहद और अजमेर के नामों से हुई है। तेरे बच्चे गुजरांवाला में घर की छत गिरने से बाप अपने 4 बच्चों समेत जाँ बहक हो गया। गुजरांवाला के इलाके गोंदलावाला में बदकिस्मत खानदान एक मरले के घर में रहता था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 40 साल ताजदीन अपनी बीवी और 4 बच्चों के हमरा घर में सो रहे थे कि अचानक मकान की छत गिर गई। बाकी की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने 40 साल ताजदीन, 10 साल अहद, 7 साल फहद, 5 साल सहर और 3 साल मदीहा की लाशों को मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां डॉक्टर्स ने बाप और 4 बच्चों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। जबकि मेहनत ताज की बीवी उस्मा को बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने 3 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चों ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। बाप से बिछड़ते हुए रो रो कर निढाल हो गए। शोएब अली की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों की हवालगी का केस जब भी होता है यही मनाजर देखने में आते हैं। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसे ही केस की समाअत हुई। माँ बाप के झगड़े में एक बार फिर बच्चे का इम्तिहान आन पहुंचा। अदालती हुक्म पर बाप ने स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को अदालत में पेश किया। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अब्दुल्ला, मुकद्दस और आमना को बाप से लेकर माँ के हवाले करने का हुक्म दिया, जिस पर बच्चा दाढ़े मार मार कर रोने लगा। वालिदैन के झगड़े में बच्चों का चीखना चिल्लाना लाहौर हाई कोर्ट में अब एक मामूल की कार्रवाई है, जो मुआशरे के एक बड़े मसले की निशानदही कर रही है। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ शोएब अली, नियो न्यूज़, लाहौर। और 62 अफराद एक बार फिर से जीत गए। गुजरांवाला में रिक्शा ड्राइवर ने खुद पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसर के साथ सुलह कर ली और मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। रिक्शा ड्राइवर चांद शहजाद ने मुलजिम सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह के हक में बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिसमें गरीब रिक्शा ड्राइवर का यह कहना है कि मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है, इसकी जमानत होने पर एतराज नहीं। सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह ने रिक्शा अपनी गाड़ी से टकराने पर ड्राइवर चांद को तशद्दुद का निशाना बनाया था।
हुकूमत अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराने को तैयार है। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल ₹2.60 महंगा होने का इम्कान है। ओगरा आज समरी को खत्मी शक्ल देकर वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा। महंगाई से तंग अवाम पर हुकूमत का एक और बम गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। ओगरा आज समरी को हतमी शक्ल देकर वजारत पेट्रोलियम को अरसाल करेगा। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹2.60, हाई स्पीड डीजल ₹3, मट्टी का तेल ₹4.20, जबकि लाइट डीजल ₹4.5 लीटर महंगा होने का इम्कान है। अगर मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर ₹17 GST आयद किया गया तो फिर इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ₹7 से ₹10 तक बढ़ सकती हैं। मनीला में होने वाले मुकाबले हुस्न में 24 साल हसीना ने 85 ममालिक की हसीनाओं को मात देकर मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर पर सजा लिया। मनीला में होने वाले मुकाबला हुस्न में फ्रांस की हसीना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का एजाज पाने में कामयाब हो गई। मिस यूनिवर्स के मुकाबले में 86 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन जीत फ्रांस की हसीना एरिस मिटनेर की हुई। मुकाबले में अमरीकी रिजर्व फोर्स की पहली हाजिर सर्विस फौजी डिशोना बाबर भी शामिल थीं, जो मिस अमरीका का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी हैं। और अब आपको बताएं कि डॉक्टर्स ने 300 किलो वजनी जावेद का कामयाब ऑपरेशन करके मैदे का साइज छोटा कर दिया। वजन में ज्यादती की वजह से जावेद शुगर और अमराज कल्ब में मुब्तला हो गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी सर्जरी के दौरान मैदे का साइज छोटा किया गया, जबकि नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए इसको 1.5 साल का अरसा लगेगा। ये सर्जरी जो कि इसके मैदे का साइज छोटा किया गया है, 300 किलोग्राम वजनी ये शख्स, और इसको जो है वो शुगर का मर्ज भी लाहक हो गया था, और अब इसका ऑपरेशन कराने के बाद मैदे का साइज छोटा किया गया है, लेकिन अभी नॉर्मल जिंदगी गुजारने में 1.5 साल का अरसा लगेगा। अब रुख करते हैं कोयटा का, जहां माजूर अफराद अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन वजीर आला हाउस के सामने धरना देना चाहते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को आगे जाने से रोक दिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई और कई मुजाहिरीन बेहोश भी हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जिस वक्त मैं कोयटा के रमज़े रोड पर मौजूद हूँ और पिछले 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है और माजूर अफराद जो हैं वो यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक जो है वज़ीर आला ने किसी नुमाइंदे को भी नहीं भेजा कि वो इनके साथ आकर यहाँ पर मुज़ाकरात करे। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो यहाँ आई हैं और डिप्टी जो मेयर हैं वो यहाँ पर आए इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन उन्होंने इनको यही यकीन दहानी कराई है कि CM तक वो इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे। लेकिन माजूर अफराद का ये कहना है कि CM तक तो कई मरतबा अपनी आवाज़ पहुँचा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनके मुतालबात वो तस्लीम नहीं किए गए हैं, और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कोयटा में सर्द हवाएं जो हैं वो शिद्दत से चलना शुरू हो गई हैं और वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। बारिश में ये माजूर अफराद बैठे हुए हैं और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो। उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनके तमाम मुतालबात जो हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, हमें अपडेट कर रही थी। कोयटा से अभी रुख करेंगे कराची का, जहां के मुख्तलिफ मकामात पर जारी तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर भी इन दिनों शहरियों के लिए शाहराह जहमत बनी हुई है। धूल, मिट्टी और ट्रैफिक जैम के मसाइल में भी इजाफा हो चुका है। तफसीलात बताएंगे आसिम अशरफ। शहर कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर जारी तरक्याती कामों ने जहां मुस्तकबिल में शाहराह की चौड़ाई और ट्रैफिक की रवानी का अंदिया दिया, वहीं इस वक्त तरक्याती कामों में सुस्ती ने शहरियों को भी मुश्किल में डाल दिया है। कारसाज से नर्सरी तक सड़क की रिकारपेंटिंग की जा रही है, तो दूसरी जानिब बलोच कॉलोनी पुल के दोनों ट्रैक्स को मुनदिम करने का अमल भी जारी है। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों का होना खुशाइंद है, लेकिन प्रोजेक्ट्स पे काम तेजी से होना चाहिए। शहरियों को वक्ती तौर पे तो मुश्किल आता है, उसके बाद तो आसानी हो जाएगी ना। आवाम की सहूलत के लिए सब कुछ हो रहा है। इसमें आधे पे काम करें आधे पे चालू रखें, इस तरीके से काम करें तो अच्छा है, आसानी है, आवाम को परेशानी नहीं होगी।
सिंध हुकूमत का दावा है कि यूनिवर्सिटी रोड, नादरन बाईपास, नाजमाबाद, गोलीमार अंडरपास, शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे समेत दर्जनों अहम शाहराहों पर जल्द काम मुकम्मल करके शहरियों को तोहफा दिया जाएगा। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज, कराची। मुराद अली शाह के वजीर आला सिंध मुंतखब होने के बाद भी उनके आबाई शहर सेवन शरीफ की हालत नहीं बदली। सफाई ना होने पर दादू में ख्वाजा सिराओं ने ढोल की थाप पर अनोखा एहतजाज किया। ख्वाजा सिराओं ने वड्डे साईं से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सेवन शरीफ में सफाई के इक़दाम करके गंदगी का अजाब खत्म कराया जाए। सेवन शरीफ में ख्वाजा सिराओं ने मुतालबा किया और ढोल की थाप पर एहतजाज भी किया, जिसमें उन्होंने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से यह मुतालबा किया कि सेवन शरीफ से गंदगी के ढेर खत्म कराए जाएं। अहम खबर देंगे आपको। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान के इलाके निजामाबाद में छापा मारा है। केमिकल मिला दूध, जाली मक्खन, घी और क्रीम बनाने वाला यूनिट सील करके 2180 किलो तैयार माल पकड़ लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारा है मुल्तान के इलाके में। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा रुबा उरूज से। रुबा उरूज, तफसीलात उनसे भी जानेंगे रुबा उरूज से। तो आपको बताते चलें कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान में ये छापा मारा है, जहां पर केमिकल मिला हुआ दूध, इसके साथ साथ जाली मक्खन, ऑयल और इस जैसी 2180 किलोग्राम तैयार माल पकड़ा गया है। इंतहाई आपको यह खबर से आगाह कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के मुल्तान में छापे के हवाले से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे लॉस एंजलिस में 23वें सालाना और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स की, जिसका इनेकाद किया गया। दिलकश मलबूसात में हॉलीवुड सितारों ने रेड कारपेट पर जलवे बिखेरे। रंगारंग अवार्ड की तकरीब अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में मुनाकिद की गई। तकरीब में बड़ी तादाद में फिल्मी और टीवी अदाकारों ने शिरकत की। हिडन फिगर्स, रवां साल गिल्ड अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में हिडन फिगर्स ने मैदान मार लिया। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड ला ला लैंड के लिए एमा स्टीवन जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा बेहतरीन टेलीविजन ड्रामा सीरीज का अवार्ड स्ट्रेंजर थिंग्स ने हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।